آج دیکھنے کے لیے شکریہ۔ مجھے یقین ہے کہ آج کا پیغام آپ کو اپنی آواز کو استعمال کرنے کی طاقت دے گا، آپ کی سوچنے کی صلاحیت کو بدلے گا اور آپ کی روح کو تازہ کرے گا۔ پادری کے دی گئے نوٹس کی پیروی کرنے کے لیے اسکرین پر دی گئے QR کوڈ کو اسکین کریں۔ آپ اسے ہماری ایپ سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یسوع نے لوگوں کو شفا دی تاکہ وہ خود کو خدا منوائے، لیکن یہ غلط ہے۔ لیکن اس نے لوگوں کو ہدایت کی کہ وہ کسی کو نہ بتائیں، اسے خفیہ رکھیں۔ اپنے الہی صفات سے خود کو خالی کر کے یسوع نے ہمیں بتایا کہ ہم وہی معجزے اور شفا جیسے کام کر سکتے ہیں جو یسوع نے کیے تھے۔ اگر آپ اپنے لیے دعا کی درخواست دینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں میسج یا ای میل یا ہماری ایپ پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں آج کے پیغام کی طرف۔ شفا آپ کی ہے۔ لوکا کی انجیل اس کے 13ویں باب میں ہم یسوع کو گرجا گھر میں دیکھتے ہیں۔ وہ عبادت خانے میں ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں، اور دیکھو ایک عورت تھی جسے 18 برس سے کسی بدرو کے باعث کمزوری تھی۔ وہ کبڑی ہو گئی تھی اور کسی بھی طرح سیدھی نہ ہو سکتی تھی۔ اب ہم نے ذکر کیا کہ آپ کے 3 حصے ہیں، آپ روح ہیں، آپ جان ہیں، اور ایک جسم ہے۔ آپ کا ایک جسم ہے، آپ اس جسم میں رہتے ہیں۔ اگر آپ مسیحی ہیں تو شیطان آپ کی روح کو نہیں چھو رہا، لیکن پھر بھی شیطان آپ کے جسم پہ حملہ کر سکتا ہے۔ در حقیقت بائبل اس عورت کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ ابراہیم کی بیٹی ہے، ایک عہد کی عورت ہے، لیکن پھر بھی اس کے جسمانی جسم پر ایک شیطانی حملہ ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ وہ کمزوری کی روح رکھتی تھی۔ اب شاید کسی ڈاکٹر نے اس کی طرف دیکھ کر کہا ہوگا کہ اس عورت کی ریڑھ کی ہڈی گھومی ہوئی ہے، لیکن ریڑھ کی ہڈی کے اس گھماؤ کی جڑ ایک شیطانی روح تھی، اور وہ جھکی ہوئی تھی، اور کسی طرح بھی وہ خود کو اوپر نہیں اٹھا سکتی تھی۔ یسوع نے اسے دیکھ کر پاس بلایا اور اس سے کہا، اے عورت، تو اپنی کمزوری سے چھٹ گئی، اور اس نے اس پر اپنے ہاتھ رکھے اور وہ اسی دم سیدھی ہو گئی اور خدا کی تمجید کرنے لگی، عبادت خانے کا سردار، اس لیے کہ یسوع نے سبت کے دن اسے شفا بخشی۔ خفا ہو کر لوگوں سے کہنے لگا کہ 6 دن ہیں جن میں کام کرنا چاہیے، پس انہی میں آ کر شفا پاؤ، نہ کہ سبت کے دن۔ خداوند نے اس کے جواب میں کہا، اے ریاکارو، کیا ہر ایک تم میں سے سبت کے دن اپنے بیل یا گدھے کو تھان سے کھول کر پانی پلانے نہیں لے جاتا؟ پس کیا واجب نہ تھا کہ یہ جو ابراہیم کی بیٹی ہے، جس کو شیطان نے 18 برس سے باندھ رکھا تھا، سبت کے دن اس بند سے جان چھڑائی جاتی؟ تو یسوع نے جڑ کی شناخت شیطانی ہونے کے طور پہ کی، جس کو شیطان نے باندھ رکھا تھا۔ میں نے لوگوں سے ملاقات کی اور ان سے بات کی، اور انہوں نے کہا، آپ جانتے ہیں بیماری خدا کی طرف سے ہے۔ نہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اعمال اس کے 10ویں باب کی 38ویں آیت میں خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا، وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا۔ بلاخر ہر بیماری زمین پر شیطان کی حکمرانی میں واپس چلے جاتی ہے، اور یہ ایسی چیز نہیں ہے جسے خدا لاتا ہے۔ لہٰذا اس وجہ پہ غور کریں کہ یسوع نے کہا کہ شفا اس کی ہے، یہ کہتا ہے ابراہیم کی بیٹی ہونا، وہ ایک یہودی عورت ہے، وہ ابراہیم کے عہد کے تحت ہے، اور اس کی وجہ سے یسوع نے کہا یہ شفا اس کی ہے، لیکن آپ کے اور میرے لیے۔ بائبل غلطیوں کی کتاب 3 باب کی 29ویں آیت میں کہتی ہے، اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور وعدے کے مطابق وارث ہو۔ لہٰذا اگر آپ مسیح کے ہیں تو وعدے کے مطابق آپ ابراہیم کی برکت اور عہد کے تحت ہیں، اور شفا آپ کی ہے، یہ آپ کی ملکیت ہے۔ اب جب خاص طور پر شفا جلدی نہیں آتی، آپ کو اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس کمزوری اور بیماری سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور ویسے بائبل کبھی بھی بیماری کو برکت نہیں کہتی۔ استثناء 28ویں باب میں خدا بیماری کو لعنت قرار دیتا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کے 42ویں باب میں اسے قید کہا جاتا ہے۔ لوکا میں جہاں ابھی ہم نے پڑھا ہے اسے غلامی کہتے ہیں، اور اعمال کے 10ویں باب کی 38ویں آیت میں خدا اسے ظلم کہتا ہے۔ متی کے 15ویں باب کی 21ویں آیت میں یہ کہتا ہے، پھر یسوع وہاں سے نکل کر سور اور سیدا کے علاقے میں روانہ ہوا، اور دیکھو ایک کنانی عورت ان سرحدوں سے نکلی اور پکار کر کہنے لگی، اے خداوند ابن داؤد، مجھ پر رحم کر، ایک بدروح میری بیٹی کو بہت ستاتی ہے۔ اب یہ عورت ابراہیم کے عہد کے تحت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ شفا مانگ رہی ہے جیسے کہ وہ عہد کے تحت ہے۔ وہ کہتی ہے، ابن داؤد، میں گھرانے کا حصہ ہوں، میں عہد کے تحت ہوں۔ وہ عورت جو ان سرحدوں سے نکلی، وہ یہ کہتی ہے،
इब्ने दाऊद, मैं इस घराने का हिस्सा हूँ, मैं उस अहद के तहत हूँ, मैं उस घराने का हिस्सा हूँ। मगर उसने उसे कुछ जवाब ना दिया और उसके शागिर्दों ने उसके पास आकर उससे ये अर्ज की कि उसे रुखसत कर दे, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती है। उसने जवाब में कहा कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के सिवा और किसी के पास नहीं भेजा गया। वो अब्राहम से खुदा का वादा पूरा कर रहा है और यहूदियों के जरिए निजात ला रहा है। और सबसे पहले अंजील सबसे पहले किसके लिए है? पहले यहूदियों के लिए है, रोमियो का पहला बाब। ये सबसे पहले यहूदियों के लिए है। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूँ, मैं अब्राहम की नस्ल के लिए भेजा गया हूँ। मगर उसने उसे आकर सजदा किया और कहा, ए खुदावंद मेरी मदद कर। उसने जवाब में कहा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं है। सबसे पहले यीशु ने शिफा को रोटी कहा, और अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम की नस्ल और वादे के मुताबिक वारिस हो। यीशु कह रहा है शिफा और निजात आपकी ही है। अब आप देखें कि उसने उस औरत से क्या कहा। ज्यादातर लोग नाराज होकर चले गए होंगे। अब मैं आपको ईमान के बारे में कुछ बताता हूँ। ईमान एक जिद है जो कभी खत्म नहीं होता। आप कहते हैं खैर यीशु ने उस औरत की तौहीन की। जरा एक मिनट रुकें और देखें कि यीशु उस औरत के बारे में क्या कहता है। तो उसने कहा, हाँ खुदावंत, तो कुत्ते भी उन टुकड़ों में से खाते हैं जो उनके मालिक की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने जवाब में उससे कहा, ऐ औरत। किंग जेम्स कहता है कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। यूनानी कहते हैं बहुत 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 बड़ा। ये बहुत बड़े ईमान वाली औरत है। यीशु उसे सबसे बड़ी दाद देते हैं। उसने कहा, औरत तेरा ईमान बहुत बड़ा है। अब जिस चीज ने उसे शिफा बख्शी वो उसका ईमान है। उसके ईमान ने उसे लायक बनाया। उस औरत ने जो अपना ईमान दिखाया उसने उसे शिफा बख्शी। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी ने उसी घड़ी शिफा पाई। मुझे बहुत पसंद है जो उस औरत ने कहा। उस औरत ने कहा, मुझ पर रहम कर। बर्तमाई अंधा वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है। यीशु वहां से गुजर रहा है और वो चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, ए इब्ने दाऊद, ए यीशु मुझ पर रहम कर। अब बाइबल कहती है कि खुदा रहमतों का बाप है। बचत की रहमत है, बरकत की रहमत है, शिफा की रहमत है और रहम की रहमत है। वो रहमतों का बाप है। रहमत खुदा की तरफ से मिलती है। अब यसाया 30वें बाब की 18वीं आयत में कहता है, तो भी खुदावन तुम पर मेहरबानी करने के लिए इंतजार करेगा और तुम पर रहम करने के लिए बुलंद होगा। अब बाइबल हमें फिलिपिनियों के 2 बाब में बताती है कि खुदा ने यीशु को बहुत सरबुलंद किया है और उसे वो नाम बख्शा है जो सब नामों से आला है। अब बाइबल कहती है कि अगर वो सरबुलंद है तो वो क्यों सरबुलंद है? आप पर रहम करने के लिए। वो इसलिए सरबुलंद है ताकि वो आप पर रहम करे। और अंधे बर्तमाई ने रहम की दरख्वास्त की। सोज सुरफैन की औरत ने रहम की दरख्वास्त की। जबूर 145 में कहता है, खुदावंद रहीम व करीम है, वो कहर करने में धीमा है और शफकत में गनी है। खुदावंद सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है। ये सब जबूर 145 में लिखा है। मैंने लोगों को कहते सुना है कि मौजज़ात के दिन खत्म हो गए, शिफा के दिन खत्म हो चुके हैं। कोई नहीं कहता कि रहम के दिन खत्म हो चुके हैं। कोई नहीं, और शिफा खत्म नहीं हुई। लिहाजा यीशु ने औरत की तारीफ की। यीशु ने उस औरत की तारीफ करते हुए कहा कि तेरा ईमान बहुत बड़ा है। उस औरत ने कहा कि मेरी बेटी। तो यीशु ने जवाब दिया कि तुम्हारे लिए वैसा ही हो जैसा तुम्हारा ईमान है। उस औरत के ईमान के सबब से उस औरत की बेटी ने शिफा पाई। उसके बड़े बड़े बल्कि बहुत बड़े ईमान के सबब से आपका ईमान आपको शिफा बख्शता है। अगर आपको खुदा पर भरोसा और उस पर ईमान है तो आप शिफा पाते हैं। मत्ती के 9वें बाब में कहता है, और यीशु सब शहरों और गांव में फिरता रहा और उनके इबादत गाहों में तालीम देता रहा और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी दूर करता रहा। और यहाँ आपको 3 चीजें मिलती हैं जो यीशु ने की थी। वो तालीम देने के लिए फिरता, इसका मतलब है कि समझाना। वो मनादी करने के लिए फिरता,
जिसका मतलब है ऐलान करना, और वो शिफा देने के लिए फिरता। ये वही है जो यीशु ने किया। ये वो 3 काम थे जो यीशु ने अपनी खिदमत में किए। वो समझाता, वो ऐलान करता, और वो शिफा देता, और हर कमजोरी और हर बीमारी को देखता। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर रहम आया। लोगों ने कहा यीशु की शिफा देने की वजह ये थी कि वो साबित करना चाहता था कि वो खुदा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सबसे पहले तो यीशु ने लोगों को कहा कि किसी को मत बताना कि मैंने क्या किया है। वो इसे फैलाने की कोशिश नहीं कर रहा था। ये इसलिए था कि वो रहम कर रहा था। लेकिन दूसरी बात, फिलिपियों में बाइबल हमें बताती है कि यीशु ने अपने आप को अपनी तमाम पैदाइशी खुदाई से खाली कर दिया था। फिलिपियों 2 बाब उसकी 7वीं आयत। खुदा के तौर पर उसकी तमाम सलाहियतें यीशु ने अपने आप को खाली किया और इंसानों के मुशाबे हो गया। अब अगर यीशु ने वो सब खुदा के तौर पर किया होता तो हम कहते कि क्या जबरदस्त, क्या कमाल है। लेकिन यीशु ने खुद को खाली कर कर बिल्कुल आम इंसान की तरह अपने इन 3 कामों को सर अंजाम दिया। लेकिन यीशु ने कहा, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, बल्कि उनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। यीशु ने कहा जो काम वो करता है हम भी करेंगे, क्योंकि उसने खुदा के तौर पर खिदमत नहीं की। उसने खुद को अपनी तमाम इलाही सलाहियतों से खाली कर दिया था, और यीशु ने एक आम आदमी के तौर पर खिदमत की। दरअसल यीशु ने बार बार कहा कि एक नबी, उसने अपने आप को एक नबी कहा। मरकज की किताब उसके 6 बाब में, नबी अपने वतन, रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। बस उसको उन पर तरस आया, क्योंकि वो थके हारे बिखरे हुए भेड़ों की तरह थे जिनका कोई चरवाहा ना था। अमाल 10वां बाब उसकी 38वीं आयत। खुदा ने यीशु नासरी को रूहुल कुद्स और कुदरत से किस तरह मसा किया। वो भलाई करता और उन सबको जो इब्लीस के हाथों से जुल्म उठाते थे शिफा देता फिरा, क्योंकि खुदा उसके साथ था। शिफा से मुतल्लिक चीज़ों में से जो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है वो ये है कि हम समझते हैं कि शिफा देना खुदा की मर्जी है। आपको ये समझना होगा कि खुदा मेरी भलाई चाहता है। अब मैं चाहता हूं कि आप मेरी बात गौर से सुने। आप पहले अपनी रूह में शिफा पाते हैं या अपने दिल में, वहीं से आप इसे कबूल करते हैं। सबसे पहले आप अपने दिल में उसे कबूल करते हैं। रोमियो के 10वें बाब में लिखा है कि ईमान लाना दिल से होता है। तो आप सबसे पहले अपने दिल से ईमान लेते हैं, इससे पहले कि आप इसे बाहर जाहिर होता देखें। सबसे पहले आप इसे अंदर कबूल करेंगे, फिर ये बाहर जाहिर होगा। तो पहले इसे अपने अंदर कबूल करें ताकि ये बाहर जाहिर हो, और फिर आप इस पर ईमान लाएंगे तो शायद आप मायूस हो जाएंगे, क्योंकि हर चीज हमें खुदा की तरफ से मिलती है। हम सबसे पहले रूहानी तौर पर कबूल करते हैं, क्योंकि ईमान लाना दिल से होता है। और आप पहले अंदर से ईमान लाते हैं और फिर इसे बाहर जाहिर होता देखते हैं। हमें इसके लिए अंदर से ईमान लाना बहुत जरूरी है, तभी ये बाहर जाहिर होता है। क्योंकि ईमान लाना दिल से होता है, तभी वो हम पर काम करता है। मरकज की इंजील उसके 6 बाब की 1 आयत। फिर वहां से निकलकर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सबत का दिन आया तो वो इबादत खाने में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान होने लगे और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहां से आ गईं, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। अब ये मरकज की अंजील है, लूका की अंजील उसके 4 बाब में बिल्कुल वही बताया गया है जैसे यीशु ने हमें तालीम दी थी। उसने यसाया नबी की किताब खोली, उसने पढ़ना शुरू किया। खुदावंद का रूह मुझ पर है, इसलिए कि उसने गरीबों को खुशखबरी देने के लिए मुझे मसा किया। उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई और अंधों को बेनाई पाने की खबर दूं। और उसने वो पढ़ा और फिर उनसे वो कहता है कि आज ये नोश्ता तुम्हारे सामने पूरा हुआ। वो कहता है कि आज ये मेरे बारे में बात कर रहा है और आज मैं तुम्हें शिफा देने के लिए मसा किया गया हूँ। लेकिन जब वो इसे सुनते हैं तो हैरान होकर उससे कहते हैं, अरे ये क्या है? वैसे ये आदमी कौन है? क्या ये बढ़ाई नहीं मरियम का बेटा, यूसुफ, यहूदा और शमौन का भाई नहीं? और क्या उसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं? और उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। वो सब यीशु को इन सब नामों से जोड़कर देख रहे थे और बहुत हैरान थे।
यीशु ने उनसे कहा कि नबी अपने वतन और रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता, और वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका। ये नहीं कहा गया कि यीशु ये नहीं करेगा, बल्कि ये कहा गया है कि यीशु ये नहीं कर सकता था। अब मुझे याद है कि जब मैं परवरिश पा रहा था और मुझे बताया गया कि यीशु ने हर वक्त हर एक को शिफा दी, लेकिन ये सच नहीं है। बाइबल कहती है कि वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका। अब यहाँ हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि खुदा ने उसे शिफा बख्श मसा के साथ मसा किया है, और यहाँ तक कि जिनको उसने शिफा बख्श मसा से मसा किया वो काम ना दिखा सके, वो कोई मौजज़ा वहां ना दिखा सका। क्यों? उनकी बेइतिकादी की वजह से। वो बेइतिकादों के दरमियान था। याकूब की किताब के 5वें बाब में लिखा है, अगर कोई तुम में से बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर दुआ करे। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बाइस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। अब आप देखेंगे कि ईमान के साथ दुआ है जो बीमारों को बचाती है। लेकिन अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ईमान किसका होना चाहिए? सबसे पहले कलीसियाओं के बुजुर्गों का ईमान होना जरूरी है। अगर आप गिरजाघर जाते हैं और वो ऐसा नहीं कर सकते तो आपको एक नया गिरजाघर तलाश करने की जरूरत है। अगर वहां ऐसा कोई नहीं है जो शिफा के लिए ईमान रखता हो तो आपको एक नया गिरजाघर तलाश करने की जरूरत है। लेकिन दूसरी बात, जिस शख्स के लिए दुआ की जा रही है उसका ईमान होना भी जरूरी है। ये वो शख्स नहीं है जो सिर्फ खिदमत कर रहा है, बल्कि वो शख्स है जिसकी खिदमत की जा रही है, जो खिदमत को कबूल कर रहा है। क्या यीशु का ईमान था? क्या यीशु को मसा किया गया है? हाँ, मगर वो कुछ ना कर सका। उनकी बेइतिकादी की वजह से वो कोई भी मौजज़ा वहां ना दिखा सका। और फिर ये आगे बढ़ता है और कहता है, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। उसकी लुगत E.W. वाइन्स में, जिसे आला तालीम के किसी भी इदारे, किसी भी पादरियों की दरसगाह में तस्लीम किया जाता है, कहा जाता है कि वो लोग मामूली तकल्लुफों में मुब्तला थे। आप जानते हैं कुछ लोगों को मस्सों और अंदर की तरफ बढ़े हुए पैर के नाखून से शिफा मिली है, लेकिन वो वहां पर कोई भी बड़ा काम ना कर सका, हालांकि उसे मसा किया गया था उनकी बेइतिकादी की वजह से। और इस तरह यीशु ने उनकी बेइतिकादी पर ताजुब किया। वो कहता है, और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। अब इस किस्म के कुफर के खिलाफ खुदा का कलाम सिखाया जा रहा है। यीशु इलाज ला रहा है। लूका की किताब का 5वां बाब, उसकी 17वीं आयत। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मौल्लिम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे, और खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। लिहाजा यीशु मुनादी और तालीम दे रहा है। घर भरा हुआ है। दर हकीकत लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ में लोग खड़े हैं। और जो लोग वहां हैं, खुदा की कुदरत उन लोगों को शिफा देने के लिए वहां मौजूद है। लूका की किताब उसके 5वें बाब की 18वीं आयत। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें, और जब भीड़ के सबब से उसे अंदर ले जाने की राह ना पाई तो कोठे पर चढ़कर खपरेल में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। तो वो छत पर चढ़ते हैं, वो छत से खपरेल उतारते हैं और फिर वो रस्सियां लेते हैं, और उन्होंने उस आदमी को सीधा यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा, ए आदमी, तेरे गुनाह माफ हुए। उस पर फकी फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है? खुदा के सिवा और कौन गुनाह माफ कर सकता है? यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा कि मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ और अपना कटोला उठाकर अपने घर जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा और जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ घर चला गया। लिहाजा खुदावंद की कुदरत
उनको शिफा देने के लिए वहां मौजूद थी, लेकिन उनमें से किसी को भी वहां शिफा नहीं मिली। आप ये कहेंगे कि ये नहीं कहा गया कि वो बीमार थे। अगर आप 50 लोगों को इकट्ठा करें तो उनमें से 45 लोगों को किसी न किसी चीज की जरूरत होती है। वहां ऐसे लोग थे जिनको जरूरत थी, लेकिन वो ईमान में नहीं थे। कुदरत वहां थी, लेकिन मैं कहूंगा कि ईमान है जो उसको बदल देता है। वहां पर ये एक बिजली के स्विच की तरह है। अब बिजली का स्विच वहां मौजूद है, लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप जाकर बिजली के स्विच में कुछ लगाते हैं, अगर आप बल्ब लगाते हैं तो ये चालू हो जाएगा। और यही बात खुदा की कुदरत के साथ भी है। जब शिफा देने के लिए मसा मौजूद हो, जैसा कि उस जगह पर था जहां यीशु था और जहां ये है, मैं कहूंगा कि ये यहां है। वही कुदरत आज रात यहां पर मौजूद है। कुदरत तब काम करती है जब ईमान होता है। मत्ती के 10वें बाब में यीशु ने अपने 12 शागिर्दों को बुलाया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा कि उनको निकालें और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करें। फिर ये जिक्र करता है कि वो कौन है, और यीशु ने कहा, और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जिलाना, कोढ़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना। तुमने मुफ्त पाया, मुफ्त देना। जब यीशु ने उनसे कहा कि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, उसने कहा बीमारों को अच्छा करना, बदरूहों को निकालना, कोढ़ियों को पाक साफ करना। उसने 12 के साथ यही किया और उसने 70 को अपने आगे भेजा और वो उनसे कहने लगा कि और वहां के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदावन की बादशाही तुम्हारे नजदीक आन पहुंची है। जब उसने कलीसिया को भेजा तो उसने कहा वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे, और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। वो मेरे नाम से बदरूहों को निकालेंगे। फहरिस्त इससे शुरू होती है कि वो बदरूहों को निकालेंगे और इस पर खत्म होती है कि वो बीमारों पर हाथ रखेंगे तो अच्छे हो जाएंगे। और याकूब में ये कहता है कि अगर तुम में कोई बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए और वो खुदावंद के नाम से उसको तेल मलकर उसके लिए दुआ करें। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा। अमाल की किताब का 14वां बाब उसकी 7वीं आयत। और वहां खुशखबरी सुनाते रहें। और लुस्त्रा में एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था। वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। वो पौलुस को बातें करते सुन रहा था, और जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि इसमें शिफा पाने के लायक ईमान है, लिहाजा पौलुस खुशखबरी की मुनादी कर रहा है। और जैसे ही आदमी ने सुना कि पौलुस किसके बारे में बात कर रहा है, आप जो कुछ सुनते हैं इससे आपको ईमान मिलता है, लिहाजा पौलुस शिफा के बारे में बात कर रहा है। और वो उस आदमी को देखता है जो कभी नहीं चला और कहता है कि उसमें शिफा पाने के लायक ईमान है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उसे अभी तक शिफा हो चुकी है? अभी तक नहीं, उसे कुछ करना है। उसे अपना ईमान जारी करना होगा। गॉर्डन लिंडसे ने इसे इस तरह कहा है, ईमान एक अमल है। तो पौलुस ने उसे गौर से देखा और बड़ी आवाज में कहा कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। और वो आदमी उठकर चलने फिरने लगा। और जब वो ऐसा करता है, फौरी खुदा की कुदरत उसे छूती है और वो शिफा पाता है। बाइबल कहती है कि अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। बस वो खड़ा होकर चलने फिरने लगा। उसने अपने ईमान से शिफा पाई। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप जानते हैं कि सकाफत हमें बताती है कि अच्छे लोग जन्नत में जाते हैं, लेकिन बाइबल हमें कुछ मुख्तलिफ बताती है। ये अच्छे लोग नहीं जो जन्नत में जाते हैं, ये माफ किए गए लोग हैं जो जन्नत में जाते हैं। और ये वो माफी है जो हमें हासिल करने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यीशु ने जो कहा वो ये था, उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, और कोई भी मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। दूसरे लफ्जों में, मेरी तमाम अच्छी चीजें और अच्छे काम मुझे खुदा के नजदीक रासबाज नहीं ठहरा सकती, और आपके तमाम अच्छे काम आपको खुदा के नजदीक रासबाज नहीं बना सकते। खुदा के साथ रासबाज होने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो यीशु के जरिए है, और हमें वो माफी हासिल करने की जरूरत है। लिहाजा यीशु ने कहा कि तुम्हें नए सिरे से पैदा होने की जरूरत है। आपको उसे अपना सारा दिल और अपनी सारी जान देने की जरूरत है। वो आपका दिल चोरी करने वाला चोर नहीं
ہے, آپ کو دھوکہ دینے والا اور ہیرا پھیری کرنے والا نہیں ہے. اگر آپ نے اسے اپنا سارا دل اور ساری جان نہیں دی تو یہ اب بھی آپ کے پاس ہے. تو میں آج آپ کے ساتھ دعا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ خدا سے دور ہیں اور اگر آپ خدا کے ساتھ راز باز نہیں ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں خدا کے ساتھ راز باز ہونا چاہتا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں, میں خدا کا فرزند بننا چاہتا ہوں, تو میرے ساتھ مل کر یہ دعا کریں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع صلیب پر مر گیا. مجھے یقین ہے کہ اس کے خون نے میرے گناہوں کی قیمت ادا کی اور مجھے یقین ہے کہ وہ دوبارہ جی اٹھا. میں یسوع کو اپنا سارا دل اور ساری جان دیتا ہوں. میں اب اس کے لیے جیوں گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری دعا کو سنا. میرا ماضی ختم ہو گیا. میں آج اور ہمیشہ کے لیے آپ کے گھرانے کا حصہ ہوں. یسوع کے نام میں آمین. آپ جانتے ہیں اگر یہ دعا آپ نے اپنے دل سے مانگی ہے تو خدا نے آپ کی یہ دعا سنی ہے اور آپ خدا کے ساتھ راز باز ہیں اور آپ کو معاف کر دیا گیا ہے. میں نے روحانی طور پر بڑھتے رہنے کے لیے ایک کتاب لکھی ہے اور میں یہ آپ کو بالکل مفت دینا چاہتا ہوں. آپ کی اسکرین پر معلومات موجود ہے. یہ آپ کو بڑھتے رہنے کے لیے مدد کرے گی, خدا کے ساتھ چلتے رہنے میں مدد کرے گی. آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. معلومات آپ کی اسکرین پر ہیں اور اگر آپ کو ہارڈ کاپی کی ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کریں. ہمارے ساتھ رہنے کے لیے آپ کا شکریہ. خدا آپ کو برکت دے. اگر ابھی آپ نے پادری ڈرائن کے ساتھ مل کر دعا کی ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا بہترین فیصلہ کیا ہے. ہم آپ کے لیے بہت خوش ہیں. جیسا کہ پادری ڈرائن نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے نوٹس کی مفت کاپیاں دینا پسند کرتے ہیں. یور نیو لائف. تو آپ ابھی لاگ ان کریں walkingbyfaith.tv پر اور آپ اسے وہاں سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور ہماری ایپ پر آپ اس کا آڈیو ورژن بھی حاصل کر سکتے ہیں. یہ بالکل مفت ہے اور آپ کی روحانی زندگی کے لیے ایک بہترین ذریعہ بھی. خدا کے خوبصورت کلام سے واکنگ بائی فیتھ دنیا کے تمام لوگوں کو بدل رہا ہے. آپ اپنا بیج خدا کی بادشاہی کے لیے بوئیں. وہ پیسہ آپ کے ہاتھ سے تو نکل سکتا ہے لیکن اس سے آنے والی برکت ہمیشہ آپ کی زندگی میں رہنے والی ہے. اگر آپ ہمارے پارٹنر بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس 3 آسان راستے ہیں. آپ ہمیں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں WBF GIFT to 1-888-364 GIFT پر اور آپ لاگ ان بھی کر سکتے ہیں walkingbyfaith.tv/gift پر اور ہمارے ایپ پر دیے گئے آئیکن پر کلک کریں. آپ کے ساتھ جڑے رہنا ہمیں بے حد پسند ہے. واکنگ بائی فیتھ دعا پر یقین رکھتا ہے اور اگر آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے ہمارے QR کوڈ کو اسکین کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں کی درخواست بھیجیں اور آپ انہیں walkingbyfaith.tv پر بھی بھیج سکتے ہیں. ملتے ہیں اگلے ہفتے. تب تک کے لیے خدا حافظ.